اسسٹنٹ کمشنر جتوئی محمد شعیب بوسن اور جتوئی میونسپل آفیسر محمد اقبال کی سرپرستی میں گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق ماہ صفائی مہم کا آغاز کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں جتوئی سے ہمارے نمائندے نور حسن ترک سے۔ جی نور حسن، بتائیے گا جو اسسٹنٹ کمشنر اور میونسپل آفیسر کی جانب سے صفائی مہم چلائی گئی ہے، کہاں تک صفائی کی گئی ہے؟ جی بالکل، آپ کو بتاتا چلو اسسٹنٹ کمشنر اینڈ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی محمد شعیب بوسن اور چیف آفیسر اقبال کی سربراہی میں گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق پنجاب بھر میں جو صفائی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، اس میں تحصیل جتوئی کی میونسپل کمیٹی نے بھی جو ہے نا مہم صفائی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلو کہ جتوئی میں جو ہے نا مہم صفائی کا آغاز صرف پہلی مرتبہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ پہلے بھی جو ہے نا صفائی مہم جو ہے نا میونسپل کمیٹی کی جانب سے بہت اچھے طریقے سے جو صفائی ہے وہ کی گئی ہے۔ اور آپ کو بتا چلو کہ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف جتوئی میں صفائی کی جائے گی، بلکہ جتوئی کے جو بیشتر علاقے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے نا صفائی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جتوئی کے ساتھ جو نشیبی علاقے ہیں ان میں بھی جو ہے نا صفائی کا آغاز کریں گے، اور اس کے علاوہ ٹاؤن کمیٹی جھگی والا میں بھی جو ہے نا صفائی کے مہم کا جو ہے نا جو بہت جلد آغاز کریں گے۔ اس حوالے سے کہنا تھا جتوئی کے، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلوں کہ جتوئی کی جو پوری میونسپل کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ بھی ہمراہ تھے۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر جتوئی شعیب بوسن بھی جو ہے نا ان کے ہمراہ تھے، جس میں انہوں نے بینرز بھی اویزہ کیے ہیں مہم صفائی کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پورے جتوئی شہر کو، تحصیل کو جو ہے نا ایک بار پھر سے چمکانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ویژن کے مطابق پنجاب بھر میں جو صفائی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، اس سے جو ہے نا تحصیل جتوئی میں بھی جو ہے نا میونسپل آفیسر کی جانب سے تحصیل جتوئی میں بھی میونسپل کمیٹی کی جانب سے صفائی مہم کا جو ایک مہینے کی جو صفائی مہم ہے وہ شروع کی گئی ہے۔ جی شکاری حضرات خاص طور پر اس 2 ماہ میں شکار نہ کریں۔ اس موسم میں خرگوش، چکور، تیتر اور جنگلی مخلوقات بچے یا انڈے دیتے ہیں۔ اس موسم میں شکار کرنا ان معصوم پرندوں اور جانوروں کی نسل کشی ہے۔ شکاری حضرات اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان مخلوقات پر کم از کم ان 2 مہینوں میں ان پرندوں پر ترس کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان پرندوں اور جانوروں کی وجہ سے بارشیں برساتے ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو بارشیں رک جائیں گی۔ رنگ پور ڈی پی او مظفر گڑھ کیپٹن ریٹائرڈ وجاہت طارق کی ہدایت پر اور ڈی ایس پی سٹی عمران رشید کی نگرانی میں پولیس تھانہ رنگ پور کی سب انسپکٹر زوار حسین نے مشہور بدنام زمانہ منشیات فروش ظفر مسیح کو گرفتار کر لیا، جس کے قبضے سے 30 لیٹر دیسی شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کرتے ہوئے ملزم کو حوالات میں بند کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں قبائلی ضلع کرم میں بھی پہلی بار بلدیاتی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں، جس کے لیے کاغذات نامزدگی کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام کی طرف سے جوش و خروش کے ساتھ کاغذات کے جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کاغذات جمع کرنے کے لیے پراچینار الیکشن کمیشنر آفس میں آئے، بہت سارے لوگ آئے ہیں اور ادھر بہت اچھی تسلیمات سے کام ہو رہا ہے۔ نام شاہد حسین ہے، میں وی سی بغاکی اور ایز اے جنرل کونسل سیٹ پہ کھڑا ہوں، اور کاغذاتی نامزدگی کے لیے آج آیا ہوں ادھر الیکشن کمیشن آفس۔ لوگ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، یہ چونکہ پہلا مرحلہ ہے کی پی کی اور گورنمنٹ کا اور فاٹا میں خاص کر، تو انشاءاللہ لوگ بھی پرامید ہے، عوام بھی بڑی تعاون کر رہے ہیں۔ میرا نام محمد یاسین ہے، ہم پہلی بار بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، بڑے شوق سے لوگ آ رہی ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں پہلی اس قسم کی الیکشن ہو رہی ہے۔ لسبیلا آر پارٹیز لسبیلا نے نئی حلقہ بندیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ من پسند اور مخصوص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے مطابق یہ حلقہ بندیاں کی گئیں، جو قابل قبول نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن لسبیلا کو کل ایک پریس کانفرنس میں آگاہ کر دیا تھا کہ ہمارے تحفظات دور کیے جائیں، مگر الیکشن کمیشن لسبیلا نے رابطہ تک نہیں کیا۔ آج ہمیں مجبوراً اپنی جمہوری حق کے لیے روڈ پر نکلنا پڑا۔ ترک قوم کے بہادر بیٹے ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر محمد عابد خان ترک کی جرت اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جتوئی کے علاقے جھگی والا کی ترک قوم کا اپنے شیر بہادر ڈی آئی جی کو سلام پیش کیا اور کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ اپنے ترک جوان پر، اور ٹی این این نیوز کے نمائندے نور حسن ترک نے بھی مبارکباد دی۔ بٹخیلہ میں مہنگائی کے ہاتھوں تنگ سرکاری ملازمین سڑکوں پر نکل آئے۔ ظفر پارک بٹخیلہ کے قریب مین روڈ کو بلاک کر کے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے کی دھمکی دی۔ ہرنائی زیارت ہرنائی ڈومیارا روڈ حکومتی عدم توجہی کے باعث کنٹرات میں تبدیل۔ ڈپٹی کمشنر زیارت حبیب نصیر نے زیارت اور ہرنائی کے عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے روڈ کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے۔ ہرنائی اور زیارت کے عوام کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے روڈ کی تعمیر مرمت کے لیے خصوصی فنڈز منظور کرنے کا مطالبہ۔
बलूचिस्तान भर की तरह सिबी में भी म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ बलूचिस्तान लेबर फेडरेशन के मुलाजमीन और म्यूनसिपल एम्प्लॉइज यूनियन की जानब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और धरना भी दिया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सिबी से ब्यूरो चीफ TNN न्यूज़ जान से। जी ज़हूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं कि म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की जानिब से और बलूचिस्तान लेबर फेडरेशन की जानिब से जो है म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन को जो है 8 माह से इजाफा शुदा तनख्वाहें ना मिलने और इसके अलावा जो रिटायर्ड मुलाजमीन है और इसके अलावा जो बेवाएँ हैं उनको जो है पेंशनें ना मिलने के खिलाफ यहाँ पर जो मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज इस टाइम जो है या इकबाल रोड पे इन्होंने धरना दिया हुआ है और एहतजाजी मुजाहरा करे। मेरे साथ यहाँ पर बलूचिस्तान लेबर फेडरेशन के जिला सदर मौजूद है। इस हवाले से इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं जी, कहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बलूचिस्तान लेबर फेडरेशन हमारे मुलाजमीन के हकूक़ के लिए हमेशा सरापा एहतजाज रही है और ये गवर्नमेंट बलूचिस्तान के हकूक़ देने से कासिर है और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की तकरीबन 8 माह की जो इजाफी तनख्वाह है वो अभी तक अदा नहीं की गई और इस महीने की भी तनख्वाह उन्हें नहीं दी गई। इस और वासा के मुलाजमीन को भी उनकी तनख्वाह और बकाया जात से महरूम रखा जा रहा है। इसके लिए हमारे पूरे बलूचिस्तान में एहतजाज है और आज हमारे म्यूनसिपल कमेटी PWD और बलूचिस्तान लेबर फेडरेशन की तरफ से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान में एहतजाज है और इसी सिलसिले में हमारे सिबी के मुलाजमीन और मजदूर इस एहतजाज पर हमारा गवर्नमेंट ने मजबूर किया है और हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम अपने हकूक हासिल नहीं करते हैं। आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना है कि हम लोग की जब तक तनख्वाहें नहीं अदा की जाएगी हमारा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन लोगों ने जो है आज से काम चोर हड़ताल भी की हुई है और यहाँ पर जो है सिबी के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो कचरा कुंडी में तब्दील हो गए और इसके साथ साथ इस जो रैली और धरने में जो है खवातीन की भी बड़ी तादाद जो है मौजूद है। इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें तनख्वाहें नहीं मिली है जिसकी वजह से जो हमारे चूल्हे वो भी इस टाइम बुझ चुके हैं। जी, यूनियन काउंसिल झुग्गीवाला की बस्ती झबेल में अरसा 28 साल से बिजली नहीं है। बिजली न होने की वजह से बस्ती झबेल के लोग परेशान हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नूर हसन से। जी नूर हसन, बस्ती झबेल में कब से बिजली का मसला है और आखिर क्या वजह है कि बिजली का मसला हल नहीं हो रहा? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन काउंसिल झुग्गीवाला की बस्ती झबेल में जो अरसा तकरीबन 28 बस्ती को जो है ना बिजली कर दिया गया है। मेरे साथ कुछ इस बस्ती के लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है इनको इन बस्ती को जो है ना बिजली मुहैया नहीं की जा रही। जी, असांको तकरीबन 35 साल थे कॉलोनी दे रहंदे हुए सारे लाइट का नहीं असां MPM तक और जोते तक और मुजफ्फरगढ़ तक दरखास्त नहीं से साडी कोई गाल ही नहीं सुनते और जेको आदमी इतना परेशानी थी लाइट को बगैर गर्मी दे बहु तरफा थी तो कोई सारी गाल ही नहीं सुनते। मेहरबानी थी वे तो सारे नाल तावन करो, मेन तार साड़ी उतू गुजरती करी है साको लाइट का कोई भी कार्य का इंतजाम करते रहने पे मेहरबानी थी सके तो सारे उतरे तावन करो। जी, जैसा कि बिल्कुल इन लोगों का कहना है कि हमने मकामी MLA MPA को भी दरखास्तें दी हैं, उसके अलावा यहाँ पे सब डिवीजनल जतोई को भी दरखास्तें दी हैं, लेकिन हमारी दरखास्तों के ऊपर कोई सुनवाई नहीं की जाती और झुग्गीवाला तक ही जो वापडा के मुलाजमीन है वहाँ झुग्गीवाला तक ही महदूद होकर रह गए हैं। जी, कोयटा मेट्रोपॉलिटन मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेड जोन की जानब रैली। मेट्रोपॉलिटन मुलाजमीन ने गुज़श्ता रोज़ रेड जोन जाने का ऐलान किया था। कोयटा पुलिस की भी भारी नफरी रैली के अतराफ में मौजूद। हारूनाबाद गलियांवाला टिब्बा के करीब मुसाफिर बस की डाले और मोटरसाइकिल को टक्कर, जिसके बायस मोटरसाइकिल सवार साजिद मौका पर ही जहाँ बहक हो गया। फोटाबाद से फैसलाबाद जाने वाली मुसाफिर बस टिब्बा गलियानावाला के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस काबू न रख सकी और सामने से आने वाले डाले से टकराने के बाद टिब्बा गलियांवाला से निकलने वाले मेहनतकश मोटरसाइकिल सवार 32 साला साजिद को कुचल दिया। जहाँ बहक होने वाला साजिद मोटरसाइकिल पर मुर्गियों के चूजे बेचकर गुजर बसर करता था। खुडियाँ खास नेशनल प्रेस क्लब के सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन और वसीम शेख के घर डकैती की वारदात। डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकदी 70,000 1.5 तोला तलाई जेवरात ले उड़े। तफसील के मुताबिक मोहल्ला रहमानाबाद सहाफ़ी शेख वसीम के घर 7-8 कस नामालूम मुसल्ला डाकू दाखिल हो गए। डाकू ने अहले खाना को बांध कर यरगमाल बनाया। दौरान तलाशी नकदी 70,000 1.5 तोला तलाई जेवरात 2 मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। पुलिस मसरूफ़ कार्रवाई।
पाक पतन कुबला शरीफ में झूठे मुकदमात से तंग आकर बेवा ने कुरान मजीद हाथ में पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पुलिस ने मेरी और मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी अजीरन बना दी। आए रोज़ हिरासत और परेशान किया जा रहा है। बेवा खातून की दुहाई। वज़ीर आला को जी असी इंसाफ मंगने अपील करने सानू इंसाफ दिता जाए। आई जी पंजाब को भी असी इंसाफ मंगने सानू इंसाफ दिता जाए। असी अपील अल्फे कुरान दिन्ने आ साडी कोई ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ। हरनाई म्यूनसिपल कमेटी हरनाई की जानब से तनख्वाहों की गुज़श्ता 3 माह से अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और प्रेस क्लब हरनाई के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। एहतजाजी रैली से ज़िलाई सदर हबीबुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 3 माह से म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी नहीं की गई, जिसकी वजह से उनके घरों में फाका कशी है। उन्होंने कहा कि मुतालबा करते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी के डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, म्यूनसिपल कमेटी लवाहिकीन को तैनात किया जाए। म्यूनसिपल कमेटी हरनाई में सेहत और सफाई अमले की तादाद बहुत कम है। नए खाकरबान म्यूनसिपल कमेटी में तैनात किए जाएँ और मुलाजमीन की 3 माह से बंद तनख्वाहें फौरी तौर पर अदा किए जाएँ। पाक पतन जश्न ज़हूर मौला अली अलैहिस्सलाम पूरे अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। इस हवाले से शहरियों की जानब से अज़ीमुश्शान महफ़िल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर सना खानों ने बारगाह अहले बैत में अक़ीदत के साथ नात व मनक़बत ख़ानी की। शहरियों की बड़ी तादाद ने महफ़िल में शिरकत की। महफ़िल के अख्ताम पर वलादत शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम की याद में केक भी काटा गया। 13 फरवरी को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की रिपोलिंग में होने वाली मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी धरना 24 घंटे से जारी है। मुजाहिरीन ने मरकजी शाहरा इंडस हाईवे को खैमे लगाकर बंद कर दिया। क़यादत साबका सूबाई वजीर जेल खाना जात मलिक कासिम कर रखे गए। मज़ीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। तहसील तख्ती नसरती के 38 पोलिंग स्टेशन पर ही पोलिंग हुई, जिसमें पीटीआई के टिकट होल्डर सजाद खान को 230 वोटों की बढ़तरी से कामयाब करार दिया गया, जिसके खिलाफ पीटीआई के साबिक सूबाई मुशीर जेल खाना जात मलिक कासिम और जीयूआई ने धांधली के इल्ज़ामात आयद करके न सिर्फ नताइज को मुस्तरद कर दिया बल्कि दोबारा गिनती और रीचेकिंग का मुतालबा किया। आम इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल ताख़ीरी हरबे और बहाने बनाए जा रहे हैं, जिस पर मलिक कासिम ने अपने वर्कर के हमरा मरकजी शाहरा इंडस हाईवे को अम्बीरी कले चौक के मुकाम पर खेमे लगाकर पिछले 24 घंटों से धरना देकर बंद कर रखा है। रात भर मलिक कासिम अपने वर्कर के हमरा सर्दी के बावजूद धरने में मौजूद रहे। धरने के बायस खैबर तक कराची ट्रैफिक की रवानगी मुतासर है। तौर पर माल बरदार गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। इसमें मौजूदा सामान भी ख़राब होने का खदशा है। तवील इंतज़ार के बाद ड्राइवरों ने ज़बरदस्ती जाने की कोशिश की, जिसमें हवाई फायरिंग हुई और मुजाहिरीन की जानिब से भी फायरिंग हुई, जिसके बाद न सिर्फ इलाके में खौफ व हरास फैल गया बल्कि हालात कशीदगी की जानिब निकल रहे हैं। इस सारे अमल में इंतज़ामिया दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। एहतजाज बदस्तूर जारी है। शुरका का दोबारा गिनती तक धरना ख़त्म ना करने का ऐलान किया है। कैमरामैन इबाद के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। कोहाट पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन 16 फरवरी को मुल्क भर में पैरा मेडिक्स का कौमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद सेहत के शोबे में पैरा मेडिकल स्टाफ की अहमियत को उजागर करना है। मज़ीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। कोहाट पैरा मेडिक्स एसोसिएशन के सदर राशिद बुखारी के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर कोहाट यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर उबैदुल अफरीदी, नर्सिंग एसोसिएशन के सदर मोहम्मद जफर और हेल्थ वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मदीन ने कहा कि इस दिन के मनाने का मकसद सेहत में पैरामेडिक्स की अहमियत को उजागर करना, डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स के दरमियान अंगी को बेहतर बनाना है। इस मौके पर पैरामेडिक्स के सदर राशिद बुखारी ने कहा कि पैरामेडिक्स का कौमी तदरसी की बात तो दूर है, पैरामेडिक्स जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो जगह पे आप लोग कोई तस्वर नहीं कर सकते, कोई जा भी नहीं सकता, लेकिन पैरामेडिक्स वहाँ पे काम करने के बावजूद भी हर जगह पे पैरामेडिक्स के साथ लाइक डिसलाइक होता है और पैरामेडिक्स को हमेशा दीवार के साथ लगाया जा रहा है और करते भी हैं इस तरह। हमारे ख़ुद के अफसरान, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, हमारे सूबाई इंतज़ामिया सब करते हैं पैरामेडिक्स के साथ, लेकिन पैरामेडिक्स फिर भी काम कर रहे हैं और काम करेंगे क्योंकि काम की वो तनख्वाह लेते हैं और तनख्वाह पर जो लेगी वो हलाल करने के लिए काम करेंगे। इस मौके पर नर्सिंग एसोसिएशन के सदर जफर ने बताया। और इस दिन हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि पैरामेडिक्स जो
यानी हेल्थ केयर सिस्टम में इनका एक बुनियादी रोल है। और हर जगह पर, चाहे हमारे देहात है, चाहे वहाँ पर हमारी यानी अर्बन एरिया है, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जगह पर ये अपने खिदमात दे रहे हैं। और हम भी यही यानी हम यही तवक्को करते हैं कि इनकी जो खिदमात है उनको रियलाइज़ किया जाए। पैरामेडिक्स ने कहा कि सख्त हालात में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसकी दादरसी नहीं, कई जानें जाती हैं। प्रोग्राम के आखिर में पैरामेडिक्स एसोसिएशन ने केक काटा और ढोल की थाप पर रक्स भी किया। कैमरामैन इबाद के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेर अकबर ने बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल और 1787 पर मौसूल होने वाली शिकायत के हवाले से मीटिंग की। फोकल पर्सन PMDU और 1787 इंस्पेक्टर लीगल जाम मोहम्मद मोहसन ऑनर्ड ने मीटिंग एजेंडा पर ऑफिसर्स को ब्रीफिंग दी। RPO ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल और IG पंजाब कंप्लेंट सेंटर 1787 पर मौसूल होने वाली शिकायत का जायज़ा लेते हुए कहा कि इन शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल करें ताकि आवाम को जायज़ रिलीफ फराहम किया जा सके। लियाकतपुर में कोरोना के वार जारी, असातिज़ा के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। कोरोना के बायस 2 प्राइमरी स्कूल सील कर दिए गए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फरजंद अली, प्राइमरी स्कूल पक्की मंडी जदीद को सील किया गया। असातिज़ा और बच्चों के कोरोना टेस्ट लिए जा रहे हैं। साहिवाल में महकमा सेहत के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा किया। महकमा सेहत साहिवाल के दर्जनों मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक़ में CO हेल्थ के दफ्तर से DC दफ्तर तक एहतजाजी रैली निकाली और एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पंजाब हुकूमत 5000 से ज़ायद मुलाजमीन को बरतरफ करके नई भर्तियाँ कर रही है और NTS के ज़रिए इनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। मुलाजमीन में LHVs, सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्राइवर समेत दीगर मुलाजमीन शामिल हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक उन्हें गुज़श्ता 8 माह से गवाही नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना है। हम IRM-NCH के एम्प्लॉइज़ हैं, जिसमें आया LHVs और सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं। हम अरसा दराज से वीरान BSU थे जिन्हें हमने आबाद किया है। हम डे और नाइट की सर्विसेज वहाँ पे दे रहे हैं। जच्चा बच्चा प्रोग्राम के हम मुलाजमीन हैं। हम लोग ये धरना जो है वो तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। हम लोग NTS नहीं देंगे क्योंकि हम लोग 14 साल से इन्हीं सीटों पर काम कर रहे हैं। हम लोग 14 साल से अगर काम कर रहे हैं तो अब हमसे NTS क्यों लिया जा रहा है? ये आज हम जो बुनियादी मराकज़ सेहत पे ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं अरसा 8 से 10 साल से, जिसमें LHVs आया और SG, ये हमारा एक प्रोजेक्ट था जो कि 7 साल के बाद हमारी जो सीटें थी वो सेंक्शन हो गई हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से। और सीटें सेंक्शन होने के बाद ये PTI की हुकूमत कह रही है कि इन सीटों पे हमने दोबारा से नई भर्ती करनी है। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के IRM-NCH प्रोग्राम के एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें LHVs, आया, सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। गुज़श्ता 14 साल से हम लोग अरसा दराज से इसी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। दिन रात की हमारी ड्यूटीज़ है। 24/7 BSUs और RSC पे हम लोग ड्यूटीज़ के फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं। हम लोगों की दिन रात की मेहनत की वजह से ये प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट था, अब ये प्रोग्राम रेगुलर कर दिया गया है। लेकिन हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से, जिन एम्प्लॉयज़ की दिन रात की मेहनत की वजह से ये प्रोग्राम रेगुलर किया गया है, उन्हीं को निकालने के लिए इनकी साजिशें जो हैं वो दिन ब दिन अमल में आ रही है। चीचावतनी की अवाम ने पेट्रोल महंगा करने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को घर जाने का मशवरा दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई से पिसी अवाम की मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे यासर मुग़ल से। जी यासर मुग़ल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार ने महंगाई से पिसी हुई आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया, जिससे एशिया ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी हो गई। पेट्रोल की नई कीमत पाकिस्तान की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिससे चीचावतनी की आवाम भी नहायत परेशान नज़र आ रही है। 12 रुपये पेट्रोल की नई कीमत बढ़ने से जो है तकरीबन 161 रुपये 30 पैसे मुकर्रर हो गई है। इसी तरह डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में होशरबा इजाफा होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। अभी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी महंगाई है, बहुत बड़ी महंगाई है। अभी फिर पेट्रोल बम और गिरा दिया। इससे और कौन सी ज़्यादा महंगाई है? पर घी की कीमत पता कर लो 400 रुपये। अभी पेट्रोल बढ़ गया, अभी ज़रूर 450 रुपये होगी। अरे खाने को सैकड़ों का काम करता हूँ, बच्चों को क्या करूँ, बच्चों को जहर दे दूँ। अभी एक नवाज शरीफ के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज महंगाई होगी। मैं किसी जमात के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमें महंगाई चाहिए कम कर। इतनी पेट्रोल की कीमत में नवाज शरीफ के दौर में इतना सस्ता था, हर चीज़ सस्ती थी। जब चीज़ सस्ती हो, पेट्रोल महंगा होएगा तो ऑलरेडी चीज़ महंगी होनी। तो खुदाया
खुदाया नई हुकूमत होती है तो घर चले जाओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है हुकूमत करने। उधर तुम्हें रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में इतना था कि उसके जू में कुत्ता भी एक भूखा रह जाता। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एक शहरी की आवाज़ को सुना कि खुदारा इमरान खान साहब अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते तो खुदारा घर चले जाएं, अवाम को रिलीफ दे, अवाम को सस्ती अशिया मुहैया करें ताकि गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी खा सके। जी हुकूमत ने एक बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 3 पैसे और डीजल की कीमत में 9 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफा करके अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से जहाँ गरीब तबका मुतासर हुआ है, वहीं पर बहावल नगर के तालिब इल्म की मुश्किलात बढ़ गई हैं। अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद फरहान हैदर बुखारी से। जी फरहान बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल एक बार फिर महंगा कर दिया गया। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा, जहां पर शहरी रिक्शा ड्राइवर और कार ड्राइवर हजरात परेशान हैं, वहां पर तालिब इल्म तबका भी शदीद परेशान नज़र आ रहा है। हम यहां पर एक पेट्रोल पंप में मौजूद हैं, हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको पेट्रोलियम मसनूआत में महंगाई के बाद किस किस्म की तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। जी बेटा बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। सुबह स्कूल जब आना होता है पेट्रोल डलवाना पड़ता है, आके माँ बाप जितने पॉकेट मनी देते हैं उसमें उनसे भी पैसे लग जाते हैं। पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया। खुदारा हुकूमत हमारे पर रहम करे। जी जैसे कि तालिब इल्म का कहना था कि पढ़ाई भी बहुत मुश्किल हो गई है, खुदारा हुकूमत हम पर रहम करे। हमारे साथ पेट्रोल पंप में एक और शहरी भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पेट्रोल की मसनूआत में इजाफे के बाद इनको किस हद तक परेशानी का सामना है। जी बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम। बहुत परेशानी है, हम तो पेट्रोल डलवा ही नहीं सकते। 20,000 कमाने वाला आजकल ये साइकिल लेने की ज़रूरत है, बस पेट्रोल नहीं डलवा सकते। मोटरसाइकिल में ये मोटरसाइकिल या घर चला ले या पेट्रोल डलवा ले। मेहरबानी करे, हुकूमत को चाहिए गरीबों पे कोई रहम करे। इमरान खान को चाहिए वो अपनी कुर्सी छोड़ दे, मेहरबानी। कि जैसा कि शहरी का कहना था कि मैं 20,000 रुपये माहवार कमाने वाला हूं कि मैं घर की सब्ज़ी पूरी करूंगा। हमारे लिए तो पेट्रोल डलवाना बहुत मुश्किल हो गई है। अब बहुत जल्द हम साइकिल इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। खुदारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस महंगाई पर फौरी नोटिस लें। जी पाकिस्तान नेवी के कमांडर राना शमीम अख्तर का गवर्नमेंट हाई स्कूल सैदपुर का दौरे के दौरान स्कूल तलबा में घुल मिल गए। उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कामयाबी हर शख्स की ख्वाहिश तो है, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ मराहल हैं, इनसे गुजरना पड़ता है। इन मराहल में मेहनत के लिए सही वक्त का तयन और सबसे अहम सब्र है। बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल बहावल नगर में कायम सेहत कार्ड काउंटर का मुआयना किया और काउंटर से मरीजों को फराहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। बाद डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल में ज़ेर तामीर वार्ड की तामीराती कामों का मुआयना किया और हिदायत की कि तरक्याती काम आला मेयार के साथ जल्द मुकम्मल किए जाएँ। CPO मुल्तान खुरम शहजाद हैदर की हिदायत पर पुलिस थाना सदर शुजाबाद की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। एक मनशियात फरोश गिरफ्तार, 1 किलोग्राम से जायद चर्च भी बरामद। गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोहाट की जरखेज मिट्टी ने जैसे बड़े शायर अहमद फराज, शाहिद जमान, अयूब साबर जैसे और मुसव्वर लियाकत अली खान, जैकब शकील पैदा किए। इसी तरह एक स्टूडेंट ने फनपारों की नुमाइश का एहतमाम किया। इस बुलंद हौसला स्टूडेंट के साथ हमारे नुमाइंदे मलक यासीन मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी मलक। जी शुक्रिया। इस वक्त मैं कोहाट में मौजूद हूँ जहाँ पर एक तालिब इल्म ने फनपारे बनाए हैं और वो इनकी आज नुमाइश जारी है और इस नुमाइश का दूसरा दिन है। लेकिन यहाँ पर जो नुमाइश की जा रही है, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत फनपारे उन्होंने बनाए। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि कोहाट की जो मिट्टी है इसने बहुत ही जरखेज़ हीरे पैदा किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शायर पैदा किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मुसन्निफ़ पैदा किए हैं। तो हमारे साथ एक इस तरह मुसन्निफ़ा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इन्होंने क्या नाम दिया है इस नुमाइश का और इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आप बताएं कि आप अपना तारुफ कराएं, अपना नाम बताएं और आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। मेरा नाम किरत आमिर है, कोहाट से ही ताल्लुक़ रखती हूँ। ये जो एग्ज़िबिशन आप देख रहे हैं ये यहाँ कोहाट की फ़र्स्ट सोलो लेडी आर्ट एग्ज़िबिशन है। लाइक यहाँ पे कोहाट की तारीख़ में पहले कभी किसी खातून ने एग्ज़िबिशन नहीं लगाई। आर्टिस्ट तो बहुत है लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। आर्टिस्ट जो मेल आर्टिस्ट है जैसे सर लियाकत हो गए, सर जैकब हो गए, सर शकील हो गए,
उन जैसे आर्टिस्ट ने जो है एग्जीबिशन लॉन्च की है, लेकिन हम जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं इन्होंने कभी एग्जीबिशन लॉन्च नहीं की। यहाँ पे डिफरेंट किस्म का काम है, स्केचिंग है, वाटर कलर्स हैं और एक्रेलिक है, ऑयल पेंटिंग भी है। तो ये हमने सामने लाया है। 38 पीसेस हैं, इतने ज़्यादा मैंने नहीं बनाया क्योंकि फर्स्ट स्टेप था, समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे लेके जाना है, तो छोटी सी नुमाइश थी। अच्छा, ये बताएं कि अब आपको हार्ट की जो बच्चियां जो ये सीखना चाहती हैं उनको क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम ये है कि जो काम सही है उसमें शर्म आती है। बाज़ बच्चे बोलते हैं हमें शर्म आती है तो हम नहीं करते, हम सामने कैसे जाएंगे, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये पैगाम है कि भाई आप लोग अगर सही काम कर रहे हो तो पहले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि आप जितना काम करेंगे उतना आपका आर्ट निखरेगा। आर्ट निखर जाए तो क्रिटिसिज्म भी कम हो जाता है। और कल भी मैंने जैसे इंटरव्यू में बात की थी, मैं आज भी यही कहूँगी कि अपने पर्दे में रह के आप जो अच्छा काम करना चाहते हैं आप करें, लेकिन ये है कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह पेरेंट्स होते हैं तभी हम जैसे बच्चे आगे जा सकते हैं। जी, आपने सुना कि अगर माँ बाप सपोर्ट करें तो बच्चे आगे जा सकते हैं। ये तालिब इल्म का पैगाम है। कोहाट की बच्चियों की उन्होंने पैगाम दिया है कि अपने वालिदैन की इत्तलात भी करें और उनके जो शौक़ है वो भी उनके साथ पूरा करें। जी, महकमा एजुकेशन डेरा बुगटी की जानब से दाखिला मुहिम के सिलसिले में डेरा बुगटी के मुख्तलिफ स्कूलों में बाग का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल ओल्ड सुई में भी दाखिला मुहिम बाग का एहतमाम किया गया। दाखिला मुहिम बाग में मेहमान खुसूसी महकमा एजुकेशन अफसर मोहम्मद नवाज बुगटी, डिप्टी एजुकेशन अफसर अब्दुल रज़ाक बुगटी, ज़िलाई सदर GTA बी फैज़ बुगटी, हेड मास्टर अब्दुल वाहिद बुगटी, हेड मास्टर अजीज़ बुगटी, हेड मास्टर मसूद बुगटी, हेड मास्टर गुलाम बख्श बुगटी समेत असातिज़ा कराम, तलबात समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर महकमा एजुकेशन अफसर नवाज बुगटी का कहना था कि वाक़ का मकसद अवाम में शऊर उजागर करना है। खानपुर के नवाही इलाका नवाकोट चक नंबर 103 में चोरी की वारदात। मुज़ाहमत पर घर का मालिक चोरों की फायरिंग से कत्ल। 3 मुसल्लह चोर घर में चोरी की वारदात की नीयत में दाखिल हुए। मुज़ाहमत पर घर के मालिक आशिक गरगेज को मुलज़मान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर ज़ाहिर पीर पुलिस ने मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी। ताहाल पुलिस मुलज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस का दावा। मंजनाबाद के मज़ाफ़ात अदन व गादा सिंह सैयद अली में फोर्ड नहर के किनारे करोड़ों रुपए के फंड से सेम नाला की नई सिरे से खुदाई के खिलाफ मकामी ज़िम्मेदारों काश्तकारों का एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर इस सेम नाले की खुदाई बंद कराते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। यहाँ मामला ये है कि एक वफाकी सेक्रेटरी यहाँ से एक सेमवा निकलवा रहा है जो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। वो भी किसी 2 नंबर तरीके से उसने दरखास्त लोगों के जो साइन करवाए हैं ना कि यहाँ से सेम निकाली जाए, वो जाली दख्सत हैं। हम तमाम किसान यहाँ इकट्ठे हैं, किसी को इत्माद में नहीं लिया गया। हमने वज़ीर आला पंजाब को भी, वज़ीर आज़म के पोर्टल सेंटर पे भी शिकायतें नोट करवाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार हमने मीडिया से और किसान इदाद के दोस्तों से रब्ता किया। उनकी मेहरबानी है, वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारा एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा अगर ये सेमवा ना रोकी गई तो हम लाहौर प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज करेंगे और वज़ीर आला उसका घेराव भी करेंगे। तनख्वाहें ना मिलने और NTS कानून के खिलाफ मुलाजमीन को रेगुलर न करने पर मुलाजमीन की डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ननकाना में एहतजाजी रैली। एहतजाजी रैली में माँ बच्चा प्रोग्राम के तहत ड्यूटी करने वाले मुलाजमीन, लेडी हेल्थ विजिटर, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर्स और आया समेत दर्जनों मुलाजमीन ने शिरकत की। रैली में मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुतालबात दर्ज थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुलाजमीन का कहना है कि हम अपनी ड्यूटी मुकम्मल करते हैं मगर तनख्वाहें नहीं मिल रही और हमारे बच्चे मुलाजमीन को 6 माह बाद तनख्वाहें दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि हम NTS कानून को नहीं मानते।